পশ্চিম বাংলার অলিতে গলিতে দলিত নাটক করে বেড়ায়। ফলে আমার দর্শনটাই হলো গৌতম বুদ্ধ, আম্বেদকর, জ্যোতিরাও ফুলে, রামস্বামী নায়িকা এবং আরো অনেকে। এখানে আসার পেছনে আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল যে এই যে পত্র পত্রিকা যারা কাজ করছেন, বিশেষত সাদিনামা, আমাদের দাদা বহু বছর ধরে আমাদের এই দলিত সাহিত্যের পেছনে, দলিত আন্দোলনের পেছনে একটা ভূমিকা পালন করছেন। তা সেই ভূমিকাটা এখানে যারা পত্র পত্রিকা করছেন তাদের কাছ থেকেও আশা করি যে তাদের কাছ থেকেও আমরা এই সহযোগিতাটা পাব। যাই হোক, আমি কথা বলবো না, কারণ আমাদের এই দলিত আন্দোলনে পত্র পত্রিকার কথা না ছেড়ে দিলাম, পত্র পত্রিকার মানে খবরের কাগজ, এই খবরের কাগজ নিয়ে আমাদের একটা লড়াই কিন্তু প্রায় 100 বছর 150 বছর আগে থেকে চলছে। সেই প্রসঙ্গে আসল কথা পত্রিকার, সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক হরসিত সরকার আপনাদের 2-4 কথা বলবে, আপনারা একটু শুনবেন। হরসিত সরকার। মঞ্চে উপবিষ্ট এবং সামনে যারা রয়েছেন প্রত্যেককে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা অভিনন্দন জানিয়ে 2-4 কথা। প্রকৃতপক্ষে নাট্যকার রাজু দাস দলিত পত্র পত্রিকা বা দলিত একটি বিষয়টাকে নিয়ে উপস্থাপন করলেন। বিষয়টি বৃহত্তর সমাজকে ব্যাপ্ত রেখে একটি ঘরানা প্রতিটি জায়গায় স্থাপিত হয়, আজকেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। বৃহত্তর সমাজটা কারা, এটা আমাদের জানা দরকার। এই পত্র পত্রিকা কোন একটি সময় ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রী ঘরানার মুষ্টিমে কিছু মানুষের হাতে ছিল এবং সেই সুবাদে তাদের কলম তাদের হাতে ছিল। আমরা সকাল থেকে দুটো থেকে বহু আলোচনা শুনে এসেছি, বিভিন্ন পর্যালোচনা সমালোচনা। সেক্ষেত্রে কেউ কেউ বলেছেন যে আমাদের ভারত ব্রিটিশদের কাছে পরাধীন হলো। প্রকৃতপক্ষে আমাদের ভারত কখন ছিল ভাবতেও একটু আমাদের কষ্ট হয়। কেন পরাধীনতা বলেছে? বৈদিক অনুশাসনের ফলে তাদের কুসংস্কারগুলোকে ব্রিটিশরা এসে যখন ধ্বংস করতে শুরু করলো, তাই ব্রিটিশদের উপর আক্রমণ নেমে এলো। নরবলি প্রথা, সতীদাহ প্রথা, গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন দেওয়া, নিশ্চয়ই আধুনিক ভারতে এই সমস্ত প্রথাগুলোকে আমরা ভালো বলতে পারি না। যদি আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে তাকাই, ঠিক এই জায়গাটাই ছিল মধ্যযুগীয় বর্বরতার প্রধান এবং প্রথম নিদর্শন। সেই সুযোগে খান আফগান মোগল পাঠানরা যখন ভারত আক্রমণ করে তারা 600 অধিক বছর, 700 বছর প্রায় শাসন শোষণ করলো, তখন তাদের সাথে ব্রাহ্মণ্য সমাজের কোনো বৈরিতা ছিল না। কারণ তারা কখনো কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কলম তোলেনি বা ধরেনি বা আলোচনাও করেনি। এই ঘটনাকে প্রথম কষাঘাত করলেন হরিচাঁদ ঠাকুর। 1812 সালে তিনি জন্মগ্রহণ করলেন অবিভক্ত ভারতের ফরিদপুর জেলায়। তাহলে এই অবস্থার পরে তখনও এই সমাজের কথাগুলো যেহেতু বৈদিক অনুশাসনের বর্ণ প্রথার বিভেদ নীতিতে এদের শিক্ষার অধিকারটি কেড়ে নিয়েছিল। শিক্ষার অধিকার কেড়ে নেওয়ার ফলে তাদের হাতে কলম ছিল না, তাদের সাহিত্য সংস্কৃতি ছিল ঠাকুমার মুখে মুখে বা লোক মুখে মুখে সংস্কৃতি চর্চা, লোকগাথায়। 1846 সালে গুরুচাঁদ ঠাকুরের জন্ম, 1827 সালে জ্যোতিরাও ফুলের জন্ম। 1900 প্রথম লেখাপড়ার শুরুর যে সূচনা 1881 সালে শুরু হয় গুরুচাঁদের নেতৃত্বে।
1907 সালে প্রথম নমসূত্র সুরীত পত্রিকা শুরু হয়। একটু আমি প্রিভিয়াস একদমই বলে নিলাম, এই জন্য আমাদের এই ইতিহাসগুলো না জানা থাকলে ঠিক আমরা বুঝে উঠবো না কোথা থেকে কি আসলো। 1907 সালে নমসূত্র সুরীত পত্রিকা তৎকালীন সময়েও এই ডিটিপি এইভাবে ছিল না, ব্লকে বসিয়ে বসিয়ে করা হতো। এরা যখন যেত এই বৃহত্তর সমাজের মানুষকে ব্রাত্য রাখার সুবাদে, তখনও তাদের লেখাপড়া প্রিন্টেডের জায়গাগুলোকে নিত না, অতি কষ্টে তখন এই কাজগুলি করত। পরবর্তী সময়ে আসলো ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বান্ধব, 1910 সাল এলো জাগরণ পত্রিকা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের নেতৃত্বে। এই জাগরণ পত্রিকার সুবাদে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল অবিভক্ত ভারতের প্রথম অস্থায়ী সরকারের আইনমন্ত্রী। তার লড়াই সম্পর্কে আজকে জানা নেই এমন সাহিত্য চর্চা বা পত্র পত্রিকার কারো অভাব নেই। এরপরে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার সুবাদে সোজা কথা আসল কথা নিয়ে বর্তমান সময়ে আমরা কাজ করে চলেছি সেই অবদমিত বৃহত্তর সমাজের মানুষদের নিয়ে। আমরা যদি এটা ভেবে থাকি মুষ্টিমে কিছু সংখ্যক মানুষের যন্ত্রণা তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, এটা হতে পারে না। যন্ত্রণাগুলো আমাদেরও রয়েছে, আমাদের যন্ত্রণাগুলো তারা যেন সমব্যথী হয়ে সমভাগী রূপে গ্রহণ করে। ধন্যবাদ সবাইকে। मैं हर्षित सरकार जी को दो चीजें सूचना देना चाहता हूँ। एक, हरिचंद ठाकुर का बांग्लादेश में जहाँ घर है, मैं वहाँ गया था। सेकंड, बहुत जल्दी जोगिंद्र मंडल पर एक किताब हमारे यहाँ से आ रही है, 4 महीने लगेंगे 6 लगेंगे मालूम नहीं, मोरलेस सब काम कंप्लीट है। मैं आगे के लिए अब हम समापन की ओर हैं और मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए मीनाक्षी जी का आभार। धन्यवाद मंच और धन्यवाद यहाँ पर जो बैठे हैं उन धन्यवाद मंच और धन्यवाद सभी जो यहाँ बैठे हुए हैं उन सभी को धन्यवाद। आज यहाँ पर भारतीय भाषा परिषद और सदीनामा ने मिलकर एक उपयोगी और सुंदर कार्यक्रम कोलकाता के पत्रकारिता को लेकर किया, जिससे हमें बहुत कुछ जानने और समझने को मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ भाषाओं में था, ये 5 भाषाओं में किया गया था। अब ये कार्यक्रम सारे विद्वान जन को सुनते समझते समाप्त हो गया है। इसके लिए हम सबसे पहले धन्यवाद देते हैं कि मैं आभार प्रकट करती हूँ सभी वक्ताओं का, जिन्होंने प्राणवंत व ज्ञानवर्धक वक्तव्य से हम सभी को लाभान्वित किया। मैं आभार प्रकट करती हूँ प्रबुद्ध श्रोतागण, जिन्होंने पूरी तन्मयता से इतने समय तक यहाँ बैठकर सुना और सारे वक्तव्यों को सुना। मैं आभार प्रकट करती हूँ कुसुम खेमानी जी का एवं भारतीय भाषा परिषद के, जिनके सार्थक सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हो सका। मैं आभार प्रकट करती हूँ उस प्रेस समूह का और अंत में आभार प्रकट करती हूँ उस कार्यक्रम में प्रयत्न एवं परोक्ष रूप से जुड़े चिंतकों का, जिनके अथक प्रयास से ये आयोजन सफल हुआ। इसमें जितने भी जन हैं और सदीनामा के संपादक ने जो बीड़ा उठाया था, ये सोचकर कि सारे पत्रकार समूहों को इकट्ठा करके उनको पत्रकारिता के बारे में जानकारी दें, पत्रकार क्या होता है और उसको क्या करना चाहिए और वो आगे जाके क्या कर सकता है। चौथा स्तंभ जो ये बोल रहे थे, सही में चौथा स्तंभ है, लेकिन पत्रकार अपने आप को चौथा स्तंभ नहीं मान के आज गोदी मीडिया में सही में बिक चुका है। ये मेरी आंख के सामने रोज मैं देखती हूँ। मैं रोज जहाँ भी जाती हूँ, अगर मेरे सम्रण बोलती जाऊँ तो आप सोच में पड़ जाओगे कि मैं जब खुद के रिपोर्टर लोग के साथ जब बैठी रहती हूँ और ऐसे ऐसे सीन देखती हूँ कि वो कैसे बिके हुए हैं, वहाँ गलत हो रहा है, उसको वो सही करके पेपर में दे रहे हैं और पेपर उसको छाप दे रहा है। उससे ज्यादा आपको और क्या मिलेगा। और मैं खुद उसकी गवाही इसलिए हूँ क्योंकि मैं जब वहाँ पर सर को देती हूँ और सर छाप देते हैं तो मुझे तो उसके लिए
साउथ 24 परगना में एक दंड मिला था कि जब मैं गई थी तो दूसरे टाइम मुझे डीआईसीओ ने वहां पर इतना बेइज्जत किया, कहने की बात नहीं। बोले कि तुमने साउथ 24 परगना के डीएम के ऊपर क्यों लिखा, जबकि मैंने कुछ नहीं, एक ही कलम लिखी कि यहाँ पर गवर्नमेंट बोल रही है गंगा सागर में आग लगने के बाद हमने यहाँ पर पूरी समुचित व्यवस्था कर दी है, लेकिन वो व्यवस्था हुई नहीं थी। तो मैंने लिख दिया कि वहाँ के दुकानदार कह रहे हैं यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। उसके लिए उनको 1 महीने के लिए इलेक्शन कमीशन में भेज दिया गया था। उसके लिए मेरे साथ ये कार्य हुआ था और उसमें मेरा साथ कोई पत्रकार ने नहीं दिया। मैं अकेली इस बात के लिए लड़ी, लेकिन मैंने फिर उनको समझाया, भाई हम लोग तो लिख के भेजते हैं, हमारे संपादक को अगर छापना होता है तो छापेगा, आप संपादक से बात करिए। तो उन्होंने कहा ये बात है, मैंने हाँ ये बात है, अगर हम सच देखेंगे तो हम लिखे नहीं। आप बताइए, मेरे को एडीएम ने बुला के बातचीत की, तो मैंने कहा मैं अगर सच देख रही हूँ, आज आप बोल रहे हो, देखिए सच बोलने का साहस करने का तरीका यह है कि आज तक हमें कोई एक भी ऐड नहीं देता है, हमें कहीं से कुछ नहीं मिलता है, जबकि हम रिपोर्टिंग करते हैं। आप ऐड करने जाइए, कहीं कुछ नहीं है, तो हम सच लिख रहे हैं इसलिए हमें ऐड नहीं है। संपादक का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम लोगों को सच लिखने का साहस भी देते हैं, बोलते कोई बात नहीं है, लिखो सच। तो ऐसे संपादक कहाँ मिलते हैं? यहाँ है सदीनामा के संपादक जितेंद्र जितांशु ही है जो ये बात बोल सकता है सीना खान के कि तुम लोग को जो लिखना लिखो, मैं छापूंगा। तो भाई आप ये गलत फहमी में मत जिए कि जीवन में कोई नहीं है भाई, मेरे सामने तो है। इसलिए धन्यवाद सभी का, और आपका भी प्रभाकर जी, आपने जो क्वेश्चन किया उसका जवाब मैंने दिया आपको। ये जवाब ही आपका नहीं, आपने कहा कि आप भी उसी संदर्भ में खड़े हैं। एडिटर से प्रश्न कर रहा हूं मैं एडिटर से प्रश्न कर रहा हूं, मैं रिपोर्टर से नहीं कर रहा। सही बात है। अगर गिफ्ट ले आते हैं और न्यूज नहीं छपती है, बात में कर देते हैं मैंने तो लिख करके दे दिया था, नहीं छपा तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वही होता है। और सभी का धन्यवाद।